ہندوستان ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں پرانی تہذیبیں پروان چڑھیں، جہاں طاقتور سلطنتیں ابھریں اور مٹ گئیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شاندار تاریخ کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ وہ کون لوگ تھے جو اس سرزمین پر آئے اور اسے ایک نئی شناخت بخشی؟ یہ 1000 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ وسط ایشیا سے ایک طاقتور قوم ہجرت کر کے آئی۔ ان کی آمد نے اس خطے کے باشندوں اور ان کی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل سیریز۔ آج ہم ہندوستان کی تاریخ کے ایک اہم باب کا جائزہ لیں گے، وہ دور جب آرین اور یہاں کے قدیم باشندے ایک دوسرے میں مدغم ہوئے اور ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ پچھلی اقساط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مختلف اقوام اس سرزمین پر آباد ہوئیں اور ان کے باہمی تعاملات نے ایک پیچیدہ سماجی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ اب ہم اس دور میں مزید گہرائی میں جائیں گے جب ذات پات کا نظام مستحکم ہوا، برہمنوں کا اثر و رسوخ بڑھا اور ایک نئی مذہبی فکر نے جنم لیا۔ 200 برس قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کا زمانہ ہندوؤں کا قدیم زمانہ کہلاتا ہے۔ دراوڑ، کول، تورانی اور دوسرے قدیم باشندوں کے ساتھ آرین کے گھل مل جانے سے ہندوؤں کے بہت سی قومیں بن گئیں۔ ذاتوں کی تمیز میں بھی عمل آ گئی تھی۔ برہمن پجاری اور پروہت تھے، وید کے قدیم دیوتا اور آرین کے اپنے سیدھے سادے عقائد فراموش ہو چکے تھے۔ ویدک زبان بھی متروک ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ برہمنوں کی تحریری علمی زبان سنسکرت تھی۔ عوام کی زبان مختلف قسم کی پراکرت تھی جس سے آج کل کی مروجہ زبانیں نکلی ہیں۔ قدیم آرین زبان میں ہر گھر کا مالک کو مربی اپنی اور اپنی اولاد کی طرف سے اگنی اور اندر دیوتا کی پوجا کیا کرتا تھا۔ وہ خود اور اس کے بیٹے پوتے زمین جوتے تھے یا کپڑا بنتے تھے، چھوٹے لڑکے مویشیوں کی خدمت کرتے تھے، عورتیں دودھ دوہتی تھی، چرخہ کاٹتی تھیں یا گھر کے اور کام کاج کرتی تھی۔ لڑائی کے وقت مرد تلوار اور تیر کمان لے کر دشمنوں سے لڑنے جاتے تھے۔ قوم کا سب سے بہادر اور عاقل آدمی ان کا سردار یا سپہ سالار رہتا تھا۔ سردار دیوتاؤں سے دعا کرتا تھا کہ لڑائی کے وقت وہ ان کی مدد کریں اور لڑائی ختم ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ جب آرین نے شمالی ہند پر تسلط کرنا شروع کیا تو آئے دن جنگ و جدل رہنے لگی۔ خاندانوں کے بزرگوں اور قوموں کے سرداروں کو اتنا فرصت نہ ملتی تھی کہ وہ وید کے منتر اور دیوتاؤں کی تعریفیں یاد کرتے۔ پس ہر قوم میں چند ایسے اشخاص مقرر کیے گئے جن کا فرض پوجا پاٹ کرانا تھا اور اس کے سوا ان کے ذمے کوئی کام نہ تھا۔ رفتہ رفتہ قوم کے باقی افراد ان کو نہایت مقدس اور متبرک خیال کرنے لگے۔ ان کا ایک نیا فرقہ بن گیا جو برہمن کہلانے لگا۔ اس زمانے میں سرداروں اور ان کے سپاہ کو کھیتی باڑی یا کسی اور کام کی فرصت نہ ملتی تھی، پس قوم کے سب سے بہادر آدمی جنگ و جدال کے لیے مقرر کیے گئے۔ قوم کا سردار ان کا سپہ سالار ہوتا تھا اور راجا کہلاتا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ بھی ایک جدا فرقہ ہو گیا اور کشتری کہلانے لگا۔ مدت دراز تک کشتری اور برہمن ہم پلہ اور ہم رتبہ رہے۔ آخر میں برہمن اول درجے پر ہوئے اور کشتری دوم درجے پر۔ قوم کے باقی لوگ جو زمین کی کاشت کرتے تھے یا کپڑا بنتے تھے یا اور کام کرتے تھے ویش کہلاتے تھے۔ یہ ہند آرائی کا تیسرا فرقہ تھا۔ چوتھا فرقہ جو سب سے زیادہ تھا اسے شودر کہتے تھے۔ ان میں ان قدیم آرین کی اور غیر آرین کی اولاد شامل تھی جنہوں نے اصلی باشندوں کی عورتوں سے شادی کر لی تھی، اور وہ اصلی باشندے جو آرین کے ساتھ گھل مل کر ایک ہو گئے تھے۔ جو وحشی قومیں آرین کے ساتھ نہ ملیں اور مغلوب ہوئیں وہ غلامی کی حالت میں آ گئیں اور سب سے نیچی ذات قرار پائیں۔ یہ لوگ جنڈال کہلاتے تھے۔ ان کو بستیوں کے اندر رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے آبادی کے باہر جھونپڑیوں میں زندگی گزارتے تھے۔ اس
तरह एक ज़माने के बाद वो कौम बनी जिसको हिंदू कहते हैं। इसको इस सूरत में आए हुए कम से कम 3000 वर्ष हो गए हैं। हिंदू के बहुत से गिरोह थे, हर गिरोह का जुदा राजा, जुदा ब्राह्मण, जुदा कुश्तरी, जुदा वेश, जुदा शोदर और जुदा जंडाल थे। बड़े बड़े शहर आबाद हुए, मंदिर बन गए, नए नए देवताओं की पूजा होने लगी। इन पुराने शहरों में एक काशी या बनारस था। जो लोग एक ही पेशा करते थे, इनकी एक अलहदा ज़ात हो गई। होते होते सैकड़ों ज़ातें बन गई जो अब तक मौजूद हैं। एक ज़ात दूसरी ज़ात का काम करने की मजाज नहीं है। एक ज़ात के लोग ना दूसरी ज़ातों के साथ खाते हैं, ना शादी करते हैं। ज़ातों की तमीज़ बड़े सगीर पाक व हिंद के हिंदुओं में ही पाई जाती है और कहीं नहीं। हिंदुओं का मजहब भी ऐसा ऐसा सूरत पकड़ता जाता था। अरीन के कदीम देवता अग्नि और अंदर माजूल हो चुके थे, शायद ही कोई इनको पूजता था। अरीन और असली बशिंदों के मजहबों के मिलाप से जो नया मजहब निकला वो हिंदुओं का मजहब था। इसके बड़े देवता ब्रह्मन, विष्णु और शिव करार पाए। इनके अलावा छोटे देवता और बहुत से थे। इस तरह अरीन की वेदिक ज़बान और शुमाली हिंद के कदीम असली बशिंदों की अपनी ज़बानों के मेल से ब्राह्मणों की तहरीरी इल्मी ज़बान संस्कृत और अवाम की बोल चाल की वो ज़बानें बनी जिनको प्राकृत कहते हैं और जिनसे आज कल की बंगाली, हिंदी और दूसरी मरूजा ज़बानें निकली हैं। हम नहीं कह सकते कि ज़ातों की तमीज़ के कायम होने में कितना अरसा लगा। सिर्फ इतना जानते हैं कि मनूजी के ज़माने से पहले पहले ये सिलसिला अमल हो चुका था। मनूजी लिखते हैं कि हिंदू के 4 वर्ण ज़ातें हैं, ब्राह्मण, कुश्तरी, वेश, शोदर, और ये भी फरमाते हैं कि ज़्यादा तादाद शोदरों की थी जो मुख्तलिफ ज़ातों के आपस में मिल जाने से पैदा हुए थे। ये 800 साल का ज़माना 1000 कबल मसीह से तकरीबन 200 कबल मसीह तक हिंदू या ब्राह्मणों का ज़माना कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का बड़ा जोर था। कदीम हिंदू सल्तनतें 200 से कबल 1000 मसीह तक कदीम अरीन सरदार अपनी अपनी कौमों को साथ लिए हुए शुमाली हिंद के बड़े बड़े दरियाओं के बराबर बराबर बढ़े और इनकी जरखेज वादियों पर काबिज हो गए। वीद के ज़माने में वो दरियाए सिंध की वादी में रहे। इसके बाद के ज़माने में गंगा और जमुना की बलाई वादियों में 5 बड़े बड़े शहर और राज कायम किए। फिर इन दरियाओं के बराबर बराबर चले जो शुमाल की जानिब हिमालय से और जनूब की जानिब बंधिया चल पहाड़ से निकलकर दरियाए गंगा में आ मिलते हैं और आखिरकार महादी, ग्वादरी और दक्कन के बाकी दरियाओं के किनारे आबाद हो गए। ज़माना सल्फ में हिंदुओं के बहुत से बड़े बड़े राज थे। करीब करीब हर जगह कुश्तरियों की हुकूमत थी, लेकिन कहीं कहीं शोदर भी राज करते थे। कितने ही इलाकों में एक ही खानदान के राजा यके बाद दीगरे सैकड़ों बरस तक हुकूमत करते रहे। इनमें आपस में भी जंग होती रहती थी। जो ज्यादा ताकतवर होता था कमजोर को दबा लेता था, जैसा कि बाद के ज़माने में भी होता रहा है। हर एक राजा का अपना दरबार था। हर दरबार के उमरा, लश्कर, शायर और पुरोहित जुदा जुदा थे। इनमें से बहुत सी सल्तनतों के नाम भी आज किसी को याद नहीं। जो मालूम है वो दर्ज किए जाते हैं। उस वक्त सबसे ताकतवर सल्तनत जो जनूबी बहार में मगध की थी, इसके शुमाल में दरियाए गंगा के पार वधिया की सल्तनत थी। मगध में कई कई खानदान सदियों तक बराबर हुकूमत करते रहे। ऐसा ऐसा दरियाए गंगा की तह की कुल सल्तनतें मगध के तख्त में आ गई। आजकल जिसको बंगाल कहा जाता है, इस जमाने में इसका मशरकी हिस्सा जंग कहलाता था और मगरबी अंग और अड़ीसा एक तीसरी सल्तनत भी शामिल था जिसे कलंगा कहते थे। मालवा का खुशनुमा पहाड़ी इलाका जो दरियाए चुंबल से सिराब होता है ऊंटी कहलाता था। ऊंटी के जनूब में सौराष्ट्र या सोठ का देश था जिसे अब गुजरात बोलते हैं। दक्कन में गोदावरी के आर पार अंधरा खानदान का राज था। इस जमाने में शुमाली हिंद का मजहब, रस्म व रिवाज और आईन व कानून
कानून दक्कन और वास्त हिंद में फैल गए थे। ब्राह्मण लोग देश देश में फिरते थे, जहाँ जाते थे वहीं इनका मजहब, इनका कानून और इनकी ज़बान भी इनके साथ साथ जाती थी। दक्कन की द्रावड़ कौमें भी ब्राह्मणों के बहुत से देवताओं को पूजने लगीं और इनकी ज़ुबान में संस्कृत के बहुत से अल्फाज दाखिल हो गए। शुमाली हिंद के ब्राह्मणों और अरीन लोगों ने अपने इल्म फजल और अपनी तहजीब के जोर से दक्कन वालों को अपना मती कर लिया। जनूबी हिंद के द्रावड़ लोगों ने भी इस ज़माने में बड़े बड़े शहर बसाए और मंदिर बनाए। इनकी भी रियासतें और सल्तनतें थीं। इल्म और हुनर में भी उन्होंने बहुत सी बातें दरियाफ्त की थीं, लेकिन शुमाली हिंद के ब्राह्मण इनसे ज़्यादा इल्म रखते थे। ब्राह्मण ने इनके मजहब और इनकी ज़बानों पर अपना सिक्का बिठाकर साबित कर दिया कि हम तुमसे बेहतर हैं, मगर इसके ये मानी नहीं है कि द्राविड़ों ने अपने मजहब और देवताओं तक बदल डाले, बल्कि जिस तरह शुमाली हिंद के हिंदुओं का मजहब कुछ अरीन और कुछ द्रावड़ कुल और तुरानी नस्ल के असली बशिंदों के अकायद के मेल जोल से बना था, इस तरह जनूबी हिंद के हिंदुओं का मजहब कुछ अरीन और कुछ द्रावड़ और कुल के मजहबों के खलत मलत होने से पैदा हुआ। इसमें दरख्तों और सांपों वगैरह की परस्तिश को जहाँ तक दखल है वो सब द्राविड़ी मजहब का हिस्सा है। दक्कन की जो कैफियत बयान हुई वस्त हिंद की भी वही थी। शुमाली मुल्क के ब्राह्मण और ताजिर कुल दक्कन में फैल गए। ताजिर तरह तरह की जिनसें अपने साथ ले जाते थे, तो ब्राह्मण अपने मजहब, अपनी ज़ुबान, अपने कानून और अपने रस्म व रिवाज का बाजार गर्म करते थे। रफ्ता रफ्ता एक ज़माने के बाद कुल हिंद हिंदू हो गया। गो हर कौम की अपनी अपनी ख़ास ज़ुबान थी, मगर हर एक में बहुत सी संस्कृत के अल्फाज ने घर कर लिया था। हर मजहब के अपने ख़ास देवता थे, ताहम बहुत से शुमाली हिंद के देवता भी पूजने लगे। गो देश देश के ब्राह्मण अपने अपने देश के भाषा बोलते थे, फिर भी वो संस्कृत में लिखने पढ़ने की महारत रखते थे और इनके शास्त्र सब संस्कृत ज़बान में थे। दक्कन की सबसे कदीम और ज़बरदस्त 3-4 रियासतें हैं। अव्वल पांड्या मुल्क तामिल के ऐन जनूब में, इसका पाया तख्त मदुराई था। दोम चोला मुल्क तामिल में पांड्या के शुमाल में इसका पाया तख्त पिची यानी तंजारुम था। सोम चीरा केराला में मगरबी घाट और समंदर के दरमियान जो अब सिबार और ट्रांकूर के नाम से मशहूर है, इसमें हमेशा बाहम लड़ाई झगड़े रहते थे। खसूसन पांड्या चोला की सल्तनतों में बाज़ आलमों का ख्याल है कि शुमाली हिंद के कुश्तरी राजाओं ने अपने सल्तनतों की बुनियाद डाली थी। बाज़ कहते हैं कि इब्तदा से इनमें द्राविड़ी राजा राज करते थे। कहते हैं कि अगस्त मिनी दक्कन आए, पांड्या की राजधानी में बहुत दिनों तक एक राजा के मेहमान रहे और उन्होंने इस देश के लोगों को अपने मजहब की तालीम दी। मगरबी घाट की सबसे ऊंची चोटी इनके नाम पर आज तक अगस्तिया मिले कहलाती है। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान की तारीख के इस अहम दौर की एक झलक, जब अरीन और दीगर कदीम अक़वाम के मिलाप से एक नई तहजीब ने जन्म लिया। ज़ात पात के निज़ाम की बुनियाद पड़ी, संस्कृत इल्म की ज़बान बनी और शुमाली हिंद के असरात दूर दराज तक फैल गए। उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको तारीख़ के ऐसे ही दिलचस्प और सनसनीखेज़ वाक़ियात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिकल सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी तजावीज़ और ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अगली किस्त में हम एक नए दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।